So today we will discuss about something new, and today is our critical thinking class. So we will discuss about any topic, no regulations allowed, rules allowed. So anyone, anything you may say, you may discuss about anything. Okay. So let's talk. Anyone wanted to start the discussion? Last time we didn't talk about Indian education system. Yes. I want that. Today Yeah. we will talk about education system. Indian education system. Indian education system. No, not only Indian education system. International education system is quite good in Can we comparison of India. Can we compare Indian education system or other education system, other countries? I think in Indian education system there was a flaw. Is we say it's scam, but it's not scam. It is a what? The exact word is not coming in my mouth. That is हिंदी में बोलूँ तो घिसा पिटा जो चल रहा है ना वही चीज. तो repeated mistaken system is there, and many flaws are there. We are only some loopholes in our yes. system. When British company is coming there in India, they are introducing new education system that is Which called company not British education system. British rule. British rule that was education system which introduced it. The name is what? I want to say something. Lord Macaulay. I want You to- know, in history you read that name, Lord Macaulay is that, but many persons are called him Macaulay, Lord Macaulay. He introduces the education system, and he said that in India there was a very good type of education system that is called Gurukul system. But if we want to rule over the India, then we have to close the education system that is called Gurukul system. And when we close that system or downfall that system, then we will rule over India. Job holders, so they only focus on English language, learning the English language, because when the employee is good in English, they are communicate betterly with Indian employees. So that is the reason behind the education system. English is introduced in India, but now we talk in English. Why? Because it is a internationally acceptable. Yes, that language. is. Anything else? Anything? All teachers are employed. They can't teach us business or many things now. They can't teach us. One thing I want to say in this topic. Before 2 days, I see a video in Instagram, and that is said that if a person does not earn a much, then how did that person teach you how to earn much? How is this possible? If a person is limited only 50,000 in a month, in a 1 lakh in a month, then how he will teach you how to earn 50 lakh a month, 50 lakh per month? Is that They reasonable? can't teach us. Is that real? Yes. They He didn't can teach teach. us. He don't- But I am also not earning much, but I may teach you because I am in the process. You have that knowledge. No, I don't have that knowledge, but I am in that process now, and my goal is also that. Why anyone have that? Okay, one. Why anyone have that dare to change something? Not a big change, but something a little change in our education system. We are trying our best, but we are in the process. Once a man tried
but he is no more. APJ Abdul Kalam. Yes, he is the He wa- person he wanted who to- had the dream to change the education system. But when his time is coming to change the thing, that time it was death of him. It was the end. So what we can do? We can do. We not maybe. We can do. We can change something little. After that, Like? all the student will Keep joining stand for themselves, and they change the system. Okay. Anything new? We will have to do one thing कि हमको ऐसा करना है कि स्टूडेंट सब आके अपने लिए सिस्टम को चेंज करें. Okay. That is also. करना चाहिए. हाँ, वो तो है. Anything you have to talk? Something to say about now? What is You have to it? give options to student. Why? We don't have any option. I cannot choose to not learn math. हाँ. I want just basic math, Hmm? but excellent in science. Hmm. That cannot be happened. Why? Why you don't enter to math? Don't want to enter math? Personal choice. Yes. Because you don't want to. Learn. No, no. I don't want to be. मैथ में कुछ डालना नहीं है तेरे को. वही है ना? I don't want to be. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. लिटरली मत लो. Okay. Anything else? You have? No? Your system topic is over because we have the choice, we have the solution, and we also have working on this process, but What solution? the sir? society is not Sir. accept. What solution? Many successes are there, and we One example we of working on this. Give one. We give the choice to the students. What power we hold to change the education? We don't have power to change the education system, Without Why? but power, how you Why? change the we education? have the power to make a system, Why? and we make How? a system. Why we don't have power of change this system? Now we don't have the power. After 5 years, I can say we must change the system with our power. Yes. It's my commitment How? It's your commitment. in this video. Yes. Also. In this video. Also mine. हिंदी भी चलेगा. हम तभी से बोल रहे हैं एजुकेशन सिस्टम चेंज क्यों नहीं होगा. Okay. अब हम तभी से बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम क्यों हम चेंज नहीं कर सकते. हम वो चेंज ना करके खुद की माइंडसेट अगर चेंज करें तो कर सकते हैं. एक और एजुकेशन सिस्टम खुद बनाए तो कैसा होगा. वही जैसे तो. आप बोल रहे हो कि हम्म. जब मैं बनाऊंगी तभी मतलब सारे बच्चे यहाँ पे शायद नहीं आएंगे. हम्म. हम कुछ बच्चों को लेके सिस्टम बना सकते हैं. हमको सारे बच्चों को पकड़ना नहीं है. हाँ. हम कुछ बच्चों को पकड़ेंगे जो कि पेन के ऊपर कैप बनेंगे. पेन दिन भर खींचता है लेकिन रात में आके कैप ही बैठता है उसके सर पे. तो वही पेन खो जाए हम तो कैप फर्क बनाने की नहीं पड़ता, कोशिश नहीं पेन खो करेंगे. जाए तो हम पेन पे फर्क फोकस नहीं नहीं करेंगे. सर जी अभी इंग्लिश नहीं करते. इंग्लिश करेंगे थोड़ा प्रॉब्लम होगा. कि इंग्लिश में इमोशन नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा. इंग्लिश अच्छा है, ठीक है, लेकिन हमारा इमोशन नहीं निकल रहा है ना. ठीक है, तो आज हम इसको हिंदी में रखते हैं आगे का सब वीडियो. तो जितना है इंग्लिश में उसको डाल देंगे एज इट इज, लेकिन आगे का हिंदी में डालेंगे. ठीक है. तो किसी को एजुकेशन सिस्टम के कैसे चेंज करें या फिर क्या कुछ प्रॉब्लम है उसके बारे में किसी को कुछ बताना है हिंदी में बता सकते हैं, चलेगा. हाँ, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? 1 मिनट. हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं बोलो. वो भी इंडियन हिस्ट्री नहीं है. मतलब जैसे अंग्रेजों का ज्यादा है वहाँ पे. हम क्या करेंगे वो जाने के लिए अगर हम अपने नहीं, past को उसका काम तो है. वो लोग हमारे इंडिया में आए थे। हम बोल रहे हैं नहीं है, लेकिन हमें मालूम तो चलना चाहिए हमारा बैक स्टोरी क्या है. नहीं तो क्या क्या हुआ है. हमारे साथ क्या क्या हुआ है देखो. और आगे एक बात है, सुन लो. जब क्यों पढ़ते हैं हम हिस्ट्री, इसका आंसर है ये. ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ मैं. पहले के ज़माने में पिरामिड्स बना था. पिरामिड्स मालूम है? हाँ हाँ. हाँ इजिप्ट में है। इजिप्ट में. वही उसको आज तक नहीं रख पाया हूँ. तो आज ना इजिप्ट का हिस्ट्री छुप गया है, हमारे पास है ही नहीं.
हाँ कहीं पे पढ़ा हुआ होगा तो होगा, हमें नहीं मालूम है। नहीं, लेकिन आज थोड़ा तक बहुत नहीं पता मिला। है, हमको पता है, ऐसा नहीं कि हमको कुछ नहीं पता, क्योंकि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हाँ? हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, हाँ। हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। ओके वही चीज। देखो जो पिरामिड्स के अंदर है, हाँ। जो उनके वॉल्स हैं, हाँ। जो ऐसे डेकोरेटिव आपको लगते हैं, वो डेकोरेटिव Okay. नहीं है, वो लैंग्वेज है उनका। लैंग्वेज है वही। और हमको क्या कहते हैं, हमें नहीं मालूम है उसके हमको बारे में। पर्सन लैंग्वेज पता था, हम्म। पर्सनल लैंग्वेज हमको पूरा अच्छे से आता था, हम्म। पर्सन टू इंग्लिश कर पाते थे हम, Okay. तो पर्सनल लैंग्वेज और क्या कहते हैं उनका सभ्यता का लैंग्वेज हम्म। का हमको क्या कहते हैं कि यदि यहाँ पर ए लिखना है तो यहाँ पर्सन में ए लिखोगे, तो इधर इजिप्शियन में क्या ए लिखोगे, हाँ वही। उस हिसाब से हमको मिला है। हाँ। तो हम उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, ट्रांसलेट धीरे धीरे कर रहे हैं, है ना। मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे कर चुके ओके, तो उसका हिस्ट्री जब छुप गया ना, तो लोग क्या बोल रहे थे, अभी तक भी लोग बोलते हैं कि जो पिरामिड्स हैं उनको एलियंस ने बनाए हैं। जो वर्कर बना रहा था, साइंस तो उसने लगाया, दोस्त है नहीं, मतलब कोई एलियन है ही नहीं दुनिया में। यस, कोई एलियन नहीं, इतने बड़े तो लाइट कितना डेंजरस चीज है, कितना मतलब बड़ा तुम light- ऐसे एक स्कूल में हो जहाँ पे कोई तुम्हारा दोस्त है ही नहीं, तुम अकेले हो स्कूल में। स्कूल में स्कूल में और बच्चे भी हैं, तुम अकेले हो, तो So, एलियंस अकेले तो हो। होंगे। हाँ स्कूल में और बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चे नहीं है, कोई नहीं बच्चे नहीं है। ना ही प्रिंसिपल है, ना ही टीचर है, तुम्हारा ना ही दोस्त नहीं है अभी। बच्चा है। और स्कूल इतना बड़ा है कि तू अपने जिंदगी में कभी पार नहीं कर सकता, वही तो तुम जिंदगी में कभी पार नहीं Canteen सकता, दिखा सोच भी नहीं सकता। सोच भी नहीं सकता पार करने का। आज तक हम सैटर्न से आगे गए हैं क्या? नहीं, हाँ गया है ना, वो क्या कहते हैं, वॉइसर वन को फेंके ना हम, वो फेंक के मैं तो हमारे घर के ऊपर से सही बोला, सही बोला। 2-4 उपग्रह फेंक के मारता हूँ मंगल पे। क्या बात करते जोक से हो, पार। भेजे तो थे, हाँ वही तो इसमें क्या? इंसान को नहीं भेजे, क्या बात वही तो प्रॉब्लम वही अरे है, इंसान को हम मार्स में नहीं भेज पाए, क्या बात कर रहे वही चीज। आज तक हम मून के पास इंसान भेजे, मार्स तक नहीं भेजे आज तक। ये अच्छा टॉपिक है, मेरे को अच्छा लगा। बहुत डेंजरस है, पूरा स्कूल है लेकिन स्कूल में कोई है नहीं, तुम्हें घर जाते हो घर में कोई है नहीं। कैन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री इसलिए जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री से हमें उनके गलती से हमें सीखने को मिलता है। हमेशा एक चीज याद रखो कि हम बायोग्राफीज क्यों पढ़ते हैं, दूसरे का पॉडकास्ट क्यों देखते हैं। मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि वो जो गलती किए हैं उनका टाइप का गलती मैं ना करूँ अपनी ज़िंदगी में, इसलिए मैं देखता हूँ पॉडकास्ट और इसलिए पढ़ता हूँ बायोग्राफीज। नहीं तो उनका बायोग्राफी से मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा यही होता है कि उनका जो गलती किया है, उनका जो टेक्निक था, उनका जो एक्सपीरियंस है, वही मुझे पता चल जाए एक हफ्ते के अंदर। वो जैसे वो अपने 30 साल जो लगाया 30 साल लगाया है, मतलब मान लो स्टीव जॉब्स वो लगाया है अपना 70 साल लगा दिया, 70 नहीं बोल सकते, 50 साल लगा दिया मान लेते हैं। उसका जिंदगी 50 साल लगा दिया सक्सेस होने में। अगर मैं एक हफ्ते में उसका टेक्निक जान पा रहा हूँ तो मैं क्यों ना पढ़ूँ वो बायोग्राफीज। ठीक है, उसका गलती से मेरे को कुछ सीखने का मिल रहा है, अगर मैं उसको अप्लाई करके Success से भी मेरे आपको को सीखने मिल रहा है। आगे ले रहा हूँ तो अच्छा है ना। तो इसलिए बायोग्राफीज पढ़ना अच्छा होता है। ठीक है, फाले छाने कोई दो। हमने एक बात छोड़ दिया था एजुकेशन सिस्टम पे, ब्रिटिश का तो ऐसा है, इंडिया में भी वैसा ही है बोलते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा ब्रिटिश इन एजुकेशन सिस्टम हर साल चेंज होता रहता है। हाँ। वो लोग बहुत खर्चा करते हैं रिसर्च पे, सब चेंज करने में वो लोग बहुत टाइम के साथ वो चलने अपडेट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, सब चीज वो अपडेट करते करते जा रहे हैं, और हम लोग वहीं पे अटके हुए। वो चाहते हैं कि इंडिया ग्रो ना करे। ऐसा नहीं है, बाहर का कोई अपोज नहीं कर रहा है हमको, हमारे अपने ही इंसान अपोज कर रहे हैं। हम अपने ही सिस्टम के लिए दबे पड़े हैं, बाहर का कोई सिस्टम कोई कुछ आज तक किसी क्यों को फर्क कोई चेंज नहीं कर रहा है। देख भाई, चेंज करने के लिए बोलना इजी है, करना मुश्किल है। वही देख भाई, यहाँ पर तो करने निकलेगा ना। मैं मेरा बात कर रहा हूँ। अभी हमारा जो सिस्टम है, अगर बच्चा पढ़ेगा तो बदलेगा, गारंटी है कि नहीं बदलेगा, गारंटी है, मेरे को भी मालूम है, तुमको भी मालूम है। लेकिन जो तुम्हारे दोस्त लोग हैं, अभी रिसेंट मेरे को खबर आया कि कुछ बच्चों के दोस्त बोल रहे हैं कि अरे वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे कुछ ऐसे ही चलता रहता है, मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करा रहे हैं, कुछ भी वीडियो बना रहे हैं।
ये चल रहा है, तो उनका माइंडसेट है नहीं ऐसा। हाँ। वो पेंट बनने के लिए बने हैं, कैप बनने के लिए नहीं बने हैं। तो तुम लोग बन रहे हो कैप बनने के लिए। मेरे दोस्त, एक बात और नहीं, है, कोई भी। एक बात और है, मेरे सारे दोस्त हर स्टूडेंट एक ना एक बार सोचता है कि चेंज करना है, लेकिन प्रेशर में दबाव नहीं करता है। सब चेंज। हमारे ऊपर प्रेशर ही नहीं है, तो खत्म। इसलिए हम काम कर रहे हैं आराम से। हमारे ऊपर प्रेशर ही नहीं है, इसलिए हम आराम से कर रहे हैं। धीरे धीरे चलते जाना है और पकड़ लेना है चीज़ को, हासिल करना है। हासिल करना है वही चीज़। मैं थोड़ा मेटाफर में बोलता हूँ, टाइम दिखाओ। पता नहीं, नथिंग एल्स। इसका तो medical एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा दबा देते हैं, क्योंकि ये सिस्टम में रहना है, सिस्टम में काम करना है और सिस्टम बनाना है। तीन काम हमें करना है। पहली बात एक बात बोलना है, सिस्टम बुरा नहीं है। सिस्टम बुरा नहीं है। 10th क्लास तक तुम जो पढ़ते हो, हाँ, वो एक टाइप का जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज जो तुमको जिंदगी में आगे वही काम। हम भी कभी नहीं बोलते कि स्कूल मत जाओ, हम बोलते हैं कि स्कूल के साथ करो, एक्स्ट्रा कुछ करो। एक्स्ट्रा कुछ करो, एक्स्ट्रा। वही चीज। तो ये है, और एजुकेशन सिस्टम पे रह के ही हमको सिस्टम चेंज करना है धीरे धीरे। तो इसलिए सिस्टम बुरा नहीं है, सिस्टम बुरा नहीं है, सिस्टम को अपडेट चाहिए। सिस्टम को अपडेट चाहिए, वही चीज जो कि बहुत सालों से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा बहुत है। सालों से चाहिए, आज तक मिला नहीं। थोड़ा बहुत हाँ, अपडेट हो रहा है, तो हाँ। मान या ना मान, एनसीईआरटी धीरे धीरे Change कर रहा है। इधर उधर करके कर रहा है। मान ना मान कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसको ये बट टाइम लगेगा। ओके, बहुत time ठीक है। लगेगा। तो थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। मेडिकल कुछ क्वेश्चन था मेडिकल साइंस के ऊपर। ओके, था बोल, पूछ दो। अब तक कोई भी ह्यूमन ब्रेन क्या हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ह्यूमन ब्रेन? अभी तक हुआ नहीं है, हो सकता है। अभी का टेक्नोलॉजी नहीं कर पा रहा है। अभी ये स्कूल में पूछा था। यस, साइंस इतना डेवलप नहीं उन्होंने हुआ मुझे है। बोल दिया था पागल। ए, रुक जाओ 1 मिनट। अभी तक वो साइंस डेवलप नहीं हुआ है। चाहे तो हम कैसे कर हो सकते सकता है अभी और लगेगा 5 साल, 5 साल में आ जाएगा वो चीज। ठीक है, हैं? कर कैसे सकते हैं? But- अभी अगर हम सोचें तो बट ये आना ना थोड़ा सा क्या होता है, Slow है। डेंजरस है। हाँ एक डेंजर है। अभी क्या मैं है? वीडियो देख रहा था, 1 मिनट, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। एक कल रात को ही वीडियो देख रहा था कि एक फैक्टिक बोल के एक यूट्यूब चैनल है, उसका लाल कलर का। हाँ, लाल कलर का लगता है मेरे को। तो वो बता रहा था कि कोई एक रोबोट है, उसके अंदर वो ह्यूमन ब्रेन को डाले हैं। तो ये सच है क्या? क्या पता उसके बारे में मैं सॉफ्टवेयर, जैसे कि सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है। डाल सकते हैं। पता नहीं, वो बोला। मैं उतरे उसके ऊपर इतना रिसर्च नहीं किया, टाइम नहीं मिला मेरे को। मैं आज जाके करूंगा। मैं देख के एडिटिंग में डाल अरे 1 मिनट बोलता हूँ ना। नहीं डाल सकते, पर डाटा तो डाटा नहीं, वो बोला कि एज इट इज ब्रेन को डाल के उसके वायर कनेक्शन करके कुछ तो सेंसर वेंसर लगा के उसको किए हैं, और उसको बोले कैसे रहेगा पहली बात। बोल रहा हूँ, 1 मिनट सुन तो ले। हाँ, सुन ले, बोल रहा हूँ, वही चीज आ रहा है। ब्लड डाल देंगे उसके अंदर। तो उसकी उसमें ऑक्सीजन चाहिए ब्रेन को, ऑक्सीजन दिया जा रहा है। विटामिन चाहिए, विटामिन दिया जा रहा है। ब्लड चाहिए, ब्लड दिया जा रहा है। उसको बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर था, अभी उसको बोल रहे हैं वेटवेयर। हाँ, वेटवेयर मतलब वेट मतलब वजन। ओदा क्या बोलते हैं? गीला। गीला वेयर ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसे बताया। मेरा ओपिनियन नहीं है, ये बोल रहा हूँ। रुको, मैं edit में डाल दूंगा। कल रात को ये वीडियो देखा और मेरे को टाइम नहीं मिला रिसर्च करने का, तो मैं नहीं किया। इसके बारे में इतना ज्यादा मैं बोल वही, इसलिए। कितना क्या कहते हैं, कंफर्मेशन नहीं है। वही तो। एक रोबोट के अंदर एक रियल इंसानी दिमाग लगाया गया चाइना के टियानजिन यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद क्या हुआ ये आप यकीन नहीं करोगे। ये एक जिंदा रोबोट है, इसके अंदर जिंदा ब्रेन सेल्स है, और इसको जिंदा रखने के लिए विटामिन, प्रोटीन, ग्लूकोज सब चढ़ाना पड़ता है इंसान की तरह। इस रोबोट में फाइनली एक वेटवेयर सिस्टम को बनाया गया। आपने सॉफ्टवेयर सुना होगा, हार्डवेयर सुना होगा, पर वेटवेयर उन सिस्टम्स को कहते हैं जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो होगा, पर इंसानी दिमाग जैसा एक वेट बायोलॉजिकल पार्ट भी होगा, रियल लिविंग बायोलॉजिकल पार्ट, वेटवेयर। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रोग्राम इसको चलाता है वो ओपन सोर्स है, मतलब आप खुद चाहो तो इसके सॉफ्टवेयर के बारे में रिसर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हो और छेड़खानी कर सकते हो। मेटाबॉक नाम का सॉफ्टवेयर से ये चलता है। इस रोबोट के फिजिकल डिजाइन को 15 देशों में पेटेंट भी कर लिया गया है। रोबोट का दिमाग दिन ब दिन मैच्योर होगा, मेमोरीज स्टोर करेगा बिल्कुल एक इंसानी दिमाग की तरह। और अगर ये सक्सेसफुल हुआ लार्ज स्केल में, तो फिर कंप्यूटर्स को बनाने के लिए हमें
सिलिकॉन चिप जीपीयू पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि तब लिटरली जिंदा दिमाग कंप्यूटर्स को पावर करेंगे, एक बायोलॉजिकल चीज कंप्यूटर को पावर करेगी। और हाँ, इसका मतलब ये भी ट्रू है कि इसमें कोई स्विच ऑफ बटन नहीं होगा, क्योंकि ये जिंदा है। कंप्यूटर की तरह आप इसे ऑफ नहीं कर सकते हो कि हाँ प्रोग्राम बंद, यानी कि इसको बंद करना यानी इसको मारना, क्योंकि इसके अंदर रियल बायोलॉजिकल सेल्स हैं। इस टाइप की टेक्नोलॉजी को ना एआई कहते हैं ना एजीआई कहते हैं, ये है HI, हाइब्रिड इंटेलिजेंस। तो ये चीज है, ये चल अगर वो बोल रहा है तो हो सकता है उस पर कुछ 1% काम हुआ हो। अगर वो ये इतना लंबा बोल रहा है, फेंका हो या बोला हो या फिर रियलिटी हो, मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है 1% भी काम हो गया हो। सच्ची आप हाँ, अभी एक कुत्ते का एक्सपेरिमेंट सुने हो? वो बहुत पहले का बहुत पहले का है। एक कुत्ते का सर काटा, दूसरे कुत्ते का सर लगाया और वो लगभग 10 मिनट तक जिंदा था। यस, उसके बाद वो वाला एक्सपेरिमेंट को बैन कर दिया गया, बैन कर दिया गया। इनह्यूमन बोल के। हाँ, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं अगर चाहूंगा, वो क्योंकि allow ये होता- इसके बारे में मैं रिसर्च नहीं किया, मैं इतना अगर जानता वो नहीं। allow होता। In the 1920s, Soviet scientist Dr. Sergei Brukhonenko performed one of the most bizarre experiments in medical history. Using a machine called the autojector, he managed to keep a severed dog's head alive by pumping blood and oxygen through it. The head could blink, lick its lips, and respond to touch, all while separated from its body. Though it sounds like something from a horror movie, this strange experiment was a breakthrough in life support technology. The autojector paved the way for the heart-lung machines used in modern open-heart surgeries, proving that organs could be kept alive outside the body. Today's ventilators and life support machines owe much to this strange and unsettling experiment, which helped save countless lives in the decades that followed. तो आज करना है। Allow होता भाई, अलाउ नहीं, देखो अभी वो हो सकता है। हाँ, ये अगर ह्यूमन का बॉडी में करोगे तो क्या होगा? सर काट के दूसरे के सर में लगा दो, हो सकता है, अभी तक रिसर्च किया नहीं है। प्रैक्टिकल हो जाए। यदि सच्ची सोचो ये सक्सेसफुल हो गया तो कितना बड़ा डेंजर है। अरे सक्सेस ही हुए ना बोलो, हाँ? जो कुत्ते में किए थे। कुत्ते में हो गया ना, इंसान में कर लिया तो कितना बड़ा danger। कितना मुश्किल है इंसान में करना, इंसान थोड़ा इंसान- फिर भी चलेगा, हो जाएगा। हाँ, मेरे हिसाब से तो हो जाएगा। यदि चल गया, देखो इतना बड़ा अभी ना research होता है। एआई आ गया है, अभी डॉक्टर्स भी बहुत, साइंस भी बहुत डेवलप कर दिया है। उस टाइम पे साइंस ने डेवलप नहीं किया था, ये सक्सेस हो गया, 10 मिनट के लिए सक्सेस हुआ। आज अगर किया जाए तो तो ये तो रहेगा। हो सकता है, हो सकता इतना है। मुश्किल है नहीं एक ये। क्वेश्चन है। बट इसके अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, आपको पता है? हम्म, यदि ये एक बार सक्सेसफुल हो गया, ये टेक्नोलॉजी आ गया, हम्म, रेट बहुत होगा इसका। बहुत होगा। बट आप एक बात सोचिए ना, हम्म। जो गरीब होगा उसको मरना पड़ेगा, उसका एक दिन डेथ है। बट जो अमीर है उसका डेथ नहीं है। हाँ। क्यों? उसका एक बॉडी ऑलमोस्ट खराब हो गया, उसको एक बॉडी में हार्ट चौक आया, हाँ, वो दूसरे बंदे को खरीदेगा, हाँ। उसका ब्रेन चेंज कर देंगे, हाँ। हो गया, वो जिंदा रहेगा। हाँ, जो अमीर बंदे हैं वो इमोर्टल हो जाएंगे। हाँ, तो इसके बीच में जो इसके कहते हैं सोशल बाउंड्रीज बनेगा ना, हाँ। लेकिन वो कभी बूढ़े नहीं, मनी का होगा। बाउंड्री वो है ना, चीज़ है। मनी का बाउंड्री से वो आगे बढ़ जाएगा। अब वो उनके तो पास इन्फिनिट टाइम आ जाएगा, और इन्फिनिट टाइम बहुत बेकार चीज होता है। बहुत बेकार चीज़ हाँ, है। लेकिन वो अमर बुद्धि भी होना होकर बुरा मार सकते होता हैं, या फिर है। हार्ट पर हमारे पास इसका पॉजिटिव भी है, क्योंकि अगर ऐसे कोई साइंटिस्ट जिनका दिमाग अगर हमारे अब तक हमारे पास होता तो अब हम कितना डेवलप कर सकते। हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनका दिमाग, अगर हम उनका दिमाग किसी और में और इतना दूर मत जाओ अभी तक। हम उनको और हो भी सकता में है, लगाएगा। ये चीज अच्छा है। अमर होना एक श्राप होता है, हाँ, होते हैं। सबसे बड़ा चीज वही है। हाँ। आइंस्टाइन अगर आज जिंदा होता, ठीक है, एक एंड होना जरूरी है, हर चीज का एक एंड होना जरूरी है, क्योंकि एंड आएगा एक क्वेश्चन तभी फिर एक स्टार्ट होगा। एक ठीक है, क्वेश्चन। ये थोड़ा मेटाफर वाली बातें हैं, इनको नहीं डालते। ठीक है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। आगे कुछ किसी का कुछ डाउट मेरा बोल दो, 1 मिनट। अगर किसी को कोई चीज करना पसंद है, मतलब किसी को ड्राइंग करना पसंद है और किसी को डांस, ओके। अगर उस बंदे का दिमाग दूसरे पे लगा दो हाँ। तो उसको ड्राइंग करना अच्छा लगेगा या डांस? मेरा भी कोई क्वेश्चन था। एक सेकंड, क्या बोला इसने? वो बोला कि अगर एक इंसान को ड्राइंग आता है, दूसरे इंसान को डांस आता Dance है, आता है। तो अगर उनका एक्सचेंज कर ले तो उनका एक्सचेंज मतलब उसका मतलब साइड डांस कर दे। ओके। तो इसका ड्राइंग वाला और इसका डांस वाला एक्सचेंज हो सकता है क्या? उसका जो काम हो सकता है क्योंकि ये जो आर्टिस्टिक चीजें होती है ना, हमारे ब्रेन का एक स्पेशल पार्ट में होता है, तो ब्रेन के साथ साथ वो पार्ट भी तो चेंज हो गया ना। और उसका तुम्हें अगर personal ड्राइंग बात है- आता है, मेरे को डांस आता है,
तो अगर हमारा दिमाग चेंज हो गया तो मेरे को कल से ड्राइंग आना लगेगा और तुम्हें डांस आना लगेगा। नहीं, हो और सकता है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जो रहेगा एक्सचेंज। ब्रेन मतलब आपका Brain इसका ब्रेन आप में लगाए, उसको ड्राइंग आता है, आपको डांस आता है, तो उसको फिर भी ड्राइंग आएगा बट उसको डांस नहीं आ सकता ना। क्यों? क्योंकि हम उसका ब्रेन सीधा ट्रांसप्लांट करते हैं ना, हम ब्रेन नहीं हटा के लगा दिए ना, टोटल ब्रेन हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ना, थोड़ी ना आधा निकाल रहे हैं। ओके सही है। जो मेमोरीज है इसका, हाँ। उसको आपका मेमोरी से अगर हम पूरा ट्रांसफर कर दे तो पूरा ही ट्रांसप्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ सचिन। हाँ बट थोड़ी ना आप क्या कहते हो, ब्रेन से इंफॉर्मेशन निकाल के दूसरे ब्रेन में डालोगे। इन्फॉर्मेशन नहीं, हाँ, हम डाल देंगे वो भी, सर वो वाला पार्ट भी आएगा सर क्योंकि वो पार्ट का किसका पार्ट का काम होता है। बहुत ज्यादा स्टोर होता है पता है। हाँ, चलेगा ना, हम कर देंगे। हाँ एक सेकंड क्वालिटी में डालोगे ना तो लग जाएंगे। सर उसके मेमोरीज वो भी हमारे अंदर ट्रांसफर हुई है। नहीं होते, मेरे लिए नहीं होते भाई, हमको कुछ ऐसा मतलब हार्ड एविडेंस नहीं है अभी तक। हम एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ नहीं कर नहीं, सकते। अगर हम करें तो हो सकता है अरे कि- तो थ्योरेटिकली बात कर सकते हैं ना हम। हाँ। अभी जो हम बात कर रहे हैं हाँ वही थियोरेटिकली है, ये थ्योरेटिकली है, लेकिन हो जाना तो practically चाहिए। ये पॉसिबल है, पॉसिबल है भी और नहीं हमको पता नहीं है भाई, हम थ्योरी बोल रहे हैं इसलिए। हाँ थ्योरी है। अरे रहने दो, इसको लंबा नहीं खींचते। डाउट हाँ, बोलो। हाँ तो अगर मतलब कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारा सब कुछ होता है, जो हम भूल जाते हैं वो भी होता है। हाँ हाँ तो क्या हो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकें? हाँ, करते हैं ना एक्टिवेट, एग्जाम में एक्टिवेट करते हैं। एग्जाम टाइम में एग्जाम मुझे याद टाइम है में करते हैं लोग। कुछ तो था बट क्या था। तुम्हें एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जाम के दिन जब तुम पढ़ते हो कुछ ज्यादा ही पढ़ लेते हो, हाँ। रात में बड़बड़ाते हो हाँ। सपने में, मेरे सपने में मैथ सॉल्व नहीं हो रहा। वही सबके माइंड का पावर है, वही एक्टिवेट है और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। ओके हाँ तो मैं बोल रही थी कैसा होगा कि अगर हम एक ऐसा मशीन बनाएं जहाँ पर कि एक इंसान का सबकॉन्शियस उस मशीन में हो और कॉन्शियसनेस उस ह्यूमन बॉडी में। तो हाँ, हो सकता है, अभी के लिए मतलब possible नहीं है। अपना सबकॉन्शियसनेस अगर- खोल के बैठे। अगर तुम मेडिकल साइंस में घुसो और कुछ इसके ऊपर रिसर्च करो तो ये सक्सेस हो सकता है 5 सालों में, 5 साल 10 सालों में, और ये प्रैक्टिकल हो सकता है, रियलिटी बन सकता है अगर तुम चाहो, तुम मेहनत करो ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? पढ़ाई करके। पढ़ो, रट्टा मार के डॉक्टर रहता नहीं, तुम रिसर्च कर सकते हो। पढ़ाई एक टाइप का नहीं होता है, पढ़ाई बहुत टाइप का होता है। अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। 3 डिग्री Knowledge लेके तो है। बैठे हो। अरे बोले नहीं जाते उसमें। कौन सा डिग्री लेके बैठे हो यार? हाँ। नहीं है मेरे पास, नहीं है डिग्री। कौन- मेरे पास पढ़ाई का कोई डिग्री नहीं है, Knowledge तो लेकिन साइको नॉलेज है, नॉलेज गेन करना अच्छा होता है। बहुत लोग लेते- साइंस पढ़ रहे हैं बट आपकी जैसे नॉलेज नहीं है उनके पास। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, उनके पास है मेरे- लेकिन वो यूज नहीं कर रहे हैं, उनके पास भी मुझे है। नहीं पता। साइंस वाले को कम मत समझो। एक सब थ्योरी है science वैसे, वाले- आपने सुना है क्या? क्या हमारे क्या कहते हैं, ब्रेन में सारा इन्फॉर्मेशन होता है, बात यह है कि कौन उसको क्या कहते हैं फाउंड कर पाता है। वही, अब use फाउंड करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। एक्सटर्नल सोर्स चाहिए और ये एक theory होना है। चाहिए। ओके वो चीज पिछली बार हम वीडियो बनाए थे कुछ अंधविश्वास के ऊपर, ब्लाइंड फेथ्स के ऊपर। हाँ। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे को आए थे रिटर्न मेरे कुछ पहचान वालों से पर्सनल में बोल रहा हूँ। पर्सनल है वो। हम साइंस करते हैं तो पूरी मंदिर का एक फ्लैग फ्लैग का उल्टा क्यों है, चलता है? उल्टा उड़ता है वो, वो हवा क्यों के डायरेक्शन के उल्टा उड़ता है। मेरे को देखिए। तो क्यों? ये आंसर मैं नहीं दूंगा क्योंकि मेरे बस में नहीं है ये चीज़, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं दे सकता क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे को मालूम नहीं है। ये आंसर बताएगा कोई कौन? ये कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि थोड़ा सा कर्व शेप में होते हैं, जैसे कि वहाँ पे जैसे ही हवा आता है ना तो वो उससे घूम के ऊपर जाते रहते हैं और ऊपर के स्ट्रक्चर भी उसको सेम हेल्प करते हैं कि इसी दिशा में जाते रहे। तो जब वो उस फ्लैग पे लगता है तो वो उसको दूसरी तरफ उसको फ्लो करने लगता है, फ्लो करने लगता है। हाँ। और ऐसा बार बार होने के कारण इधर से आ रहा है लेकिन जाता है दूसरी तरफ है क्योंकि वो रिंग हुए ऊपर जाता रहता है रोल। सच में? हाँ ऐसा होता है? मेरे को मालूम नहीं। होता होगा होता होगा, मेरे को मालूम नहीं था। ओके, आप ठीक है। नहीं बताया। नहीं मेरे को मालूम नहीं।
ओके ठीक है, कोई बात नहीं। 215 फीट ऊंचा है, फिर भी इसकी परछाई जमीन पर नहीं दिखती। मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। यहाँ प्रसाद साथ मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है, पर पहले खाना ऊपर वाले बर्तन में पकता है। इस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी उड़ता नहीं दिखाई देता। तो मैं तुमको अब इसकी रियलिटी बताता हूँ। मंदिर का टॉप का फ्लैग नॉर्मल जगह पर अगर हवा 10 किलोमीटर पर आवर से लेफ्ट साइड जा रही है तो फ्लैग भी लेफ्ट ही हिलेगा, लेकिन यहाँ फ्लैग उल्टा हिलता है हवा के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि डोम से टकराकर हवा घूम जाती है और प्रेशर डिफरेंस बनाती है। फिजिक्स में इसे एरोडायनामिक इफेक्ट बोलते हैं। इसकी वजह से बर्ड्स कभी भी इसके ऊपर से नहीं उड़ते, क्योंकि डोम के पास हवा की स्पीड और डायरेक्शन दोनों अलग होती है। बर्ड्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उससे बचकर निकलते हैं। और मंदिर के किचन में 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और नीचे आग होती है, पर सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पक जाता है। रीजन सिंपल है, स्टीम हमेशा ऊपर जाती है और प्रेशर वहाँ सबसे ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और सबसे अमेजिंग बात, दोपहर में मंदिर की शैडो गायब इसलिए हो जाती है क्योंकि जब सूरज बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है तब लेंथ इक्वल टू होता है हाइट इंटू 10 थीटा, और 10 90 डिग्री पे शैडो ग्राउंड में ऑलमोस्ट 0 बनाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि शैडो बन नहीं रही है, बट एक्चुअली बन रही होती है। तो भाई कोई भी मैजिक नहीं है, बस नॉर्मल साइंस है। तो तुम लोग में नेक्स्ट और कुछ नेक्स्ट डार्क एनर्जी के बारे में। डार्क एनर्जी मतलब जब हम कोई स्मशान में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी फील होता है हमें। हाँ। मतलब लेकिन हम उसको सह नहीं पाते, मतलब हमारा दिमाग उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। उसका जो कि उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। स्मशान में ना जो लकड़ी जलाते हैं, हाँ, उससे निकलता है। उससे जो धुआं निकलता है, उससे 2 टाइप के धुआं निकलते हैं। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, थोड़ा दिमाग को नशा देता है। नशा मतलब जैसे कि हम बैठे हुए होंगे, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा फील होगा कि भाई कोई तो हमारे पास है। जैसे कि हेलुसिनेशन बोलते हैं उसको। हाँ, आज सुबह ही हुआ मुझे। होता है। अगर तुम कोई अकेला किसी जगह पे जाओ, अगर वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हाई हो, जैसे कि रात में होता है, अगर कोई जंगल के एरिया में या फिर सुनसान एरिया में तुम रात में जाओ तो आसपास में जो पेड़ होते हैं ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे ट्रैप होकर रहेगा वो चीज़। अगर तुम वही जगह पे रात में गए ना, तो तुम्हें वहाँ पे फील होगा कि कोई तो है वही मेरे पीछे, और उसको हम फियर ऑफ अननोन कहते हैं। फियर ऑफ अननोन बोलते हैं। और सर ठीक इसका एक पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव वर्ड, मतलब फियर ऑफ अननोन, इसमें डर आ गया ना, तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। उसका पॉजिटिव वर्ड क्या है? गैप ऑफ गॉड्स, सॉरी गॉड ऑफ गैप्स। ठीक है, मतलब गॉड ऑफ गैप्स एंड फियर ऑफ अननोन, ये 2 चीज होते हैं। ये है थ्योरी। इसके बारे में अगर ज्यादा जानना है तो एक बुक है क्वांटम फिजिक्स, जो तुम्हें रिकमेंड किया था, उसका नाम क्या था? क्वांटम ऑफ यूनिवर्स, फिजिक्स इंट्रोडक्शन, क्वांटम फिजिक्स इंट्रोडक्शन। ओके, और कुछ? और एक तो था सोडिंगर्स कैट वाला कुछ एक बुक था, मैं उसका फोटो डालूंगा, पीडीएफ भी डालूंगा। और एक तो था एस्ट्रोनॉमी फॉर हरी पीपल्स। हरी पीपल्स, ओके, पीपल इन हरी या हरी पीपल, कुछ तो था, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। लेकिन उस बुक 4 बुक आएंगे, 200 पेज का आएगा ईच। 4 बुक में पढ़ने होंगे, टाइम चाहिए। इसके बारे में पढ़ लोगे ना, एक तो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही साइंस में घुस जाओगे मेरे जैसा। पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, पढ़ने में टाइम लगेगा, सच है। जैसे सुल्तान रास्ते में आते तो हमने जो भी भूत की फिल्म की कुछ देखा, वो हमारे माइंड में फिर एक बार चलने इसलिए हमको लगता है वही चीज ही होनी है। और एक एग्जांपल दूंगा। तुम जो बोले कि जब हम अकेले जाते हैं तो हमें भूत का ऐसा कुछ ज्यादा ही होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो भी फिल्म देखा है। हाँ, तो अगर एक बात ध्यान देना, अगर तुम कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, हॉरर मूवी से मिलता है थ्रिल ब्रेन को। थ्रिल हमें पहले से अच्छा लगता है, मतलब बहुत पुराने जमाने से, आदिम काल से। आदिम काल मतलब स्टोन एज के टाइम से। तो उस टाइम से हमारे दिमाग में है क्या कि हमें चाहिए थ्रिल, मतलब शिकारी। आदिम मानव जो था ना, वो क्या करता था कि उसको चाहिए अगर थ्रिल तो शिकार करने चला जाता था, या फिर बैठे बैठे कुछ भी करता था, या फिर बहुत सारे काम करता था, कुछ क्या उसका दिमाग जाता था। तो उसके बारे में डिटेल नहीं जाएंगे हम, उसके बारे में तुम ज़्यादा जान सकते हो बाकी सोर्स में से। तो थ्रिल चाहिए, तो हम इसीलिए हमको भूत का मूवी, मतलब हॉरर मूवी देखते हैं। डर तो लगता है, डर एक नेगेटिव चीज़ है, फिर भी हमको अच्छा लगता है, मज़ा आता है। किसी को डरते हुए देख के हमको मजा आता है। नहीं डरते हुए देखते हैं, प्लस डरोगे हमें भी
हाँ। अगर भूत आने वाला हो फिर भी हम छुपते छुपते देखेंगे, लेकिन भूत को देखेंगे। मजा तो आता है भाई। भूत का नहीं face कर कैसे रहा है, दिख रहा है? देखेंगे। भूत बिहेव कैसे कर रहा है, भूत कैसे उड़ रहा है, ये मजा आता है देखने में। डर लगेगा और उससे बचने का लेकिन तरीका फिर भी भी पता मजा चलेगा। आएगा। बचने का तरीका भी पता चलेगा। वही, अगर तुम भूत मूवी देख रहे हो, हॉरर मूवी देख रहे हो, अगर तुम आधा देख के छोड़ दिए तो वो हमारे दिमाग में घूमते रहेगा। दिमाग में घूमता रहेगा। जब बाथरूम में जाओगे तब पता चलेगा। बाथरूम में बैठे हुए हो और लाइट चला गया उस टाइम पे, मजा वहाँ पे आता है। ये होता है वहाँ पर fear नहीं of आता है। unknown, मतलब फियर ऑफ अननोन का और एग्जाम्पल है। और 99% चांसेस हैं जिस दिन तुम हॉरर मूवी आधा देख के सोए हो उस रात को सपना नहीं आएगा। आता। और वही टाइम पे सपना जो आएगा ना, भूत का सपना आएगा, और जहाँ पे स्टोरी खत्म हुआ था, मतलब तुम छोड़े थे आधे पे, वहीं से शुरू होगा। तुम्हारा दिमाग एक नया मूवी बनाएगा दिमाग के अंदर। मतलब मेरा दिमाग डायरेक्टर है। तुम्हारा दिमाग एक डायरेक्टर है, एक राइटर है। एक मूवी बना देते हो तुम, पूरा मूवी देखे होगे तो अच्छा एकदम इतना डिटेल होता है ना सपना, तुम फर्क नहीं पता लगा पाते कि ये रियल है या फिर सपना है, जब तक तुम्हें कोई चीटी न काटे, जब तो कोई उठा ना ले। और उस टाइम पे अगर कोई उठाएगा भी तो उसको भी लगेगा एक दो लगेगा जोरदार। हाँ, क्या? मैं मारती हूँ। मतलब तुम सपने में भूत को मार रहे हो, लेकिन तुम्हारे दोस्त को लग गया होगा 2-4। और ऐसा ही हुआ था कि हम एक भुवनेश्वर में रहते टाइम एक मूवी देख रहे थे, नाम नहीं लेंगे, 2 दोस्त देख रहे थे। तो कॉन्जरिंग थी। दो ए और बी 2 पर्सन को ले लेता हूँ। तो बी वाला नहीं, बी वाला 6 वाले ए और सी 2 पर्सन थे। पर वो तो 2 दोस्त थे, 3 दोस्त थे। हाँ। मैं एक का नाम था ए से, मेरा नाम था बी से, तीसरा का नाम था सी से, हाँ। फिर चौथा का नाम था डी। और ये रियल है। हाँ रियल है, ए बी सी डी है। तो रियल मैं था बी, तो मैं सोया हुआ था। सी जो पर्सन था, हम एक भूत के मूवी देखे रात को, सो गए। सी जो पर्सन था वो क्या कर रहा था कि मैं इधर सोया हूँ ना, ये है बेड के साइड में इधर एक बुक का शेल्फ है। तो क्या क्या मैं इधर सोया हुआ हूँ और वो सी उधर से आया और बुक शेल्फ से बुक निकल रहा है। हाँ, बोला था आपने एक बार। मैं सपने में भूत को एक लात मारा, ये झूठ सी बोल को रहे एक हो। लात मारा, लगी छाती पे लगी उसको। वो आधा घंटा तक मेरे को पता चल गया कि सी को लग गया, फिर भी इसलिए मैं सोते पड़ा रहा, क्योंकि मेरे को एक्टिंग करना था। अगर मैं उठ जाता उस टाइम पे तो सी मेरे को खत्म कर देता, तो इसीलिए बी सो गया। एक्टिंग कर रहा था कि सोने का, ठीक है सर। मतलब मैं सोने का एक्टिंग कर रहा था। सर ये थ्योरी आपने सुना है क्या बोल रहा था? कि हमारी लाइफ में एक ड्रीम है। हमारी लाइफ में एक ड्रीम है, क्या है? हाँ, मतलब ये जो हम जी रहे हैं ये एक ड्रीम है। ओके, सिमुलेशन सिमुलेशन नहीं है, सिमुलेशन अलग है, अलग अलग था उसका। जो है डिल्यूजन थ्योरी। हाँ काइंड ऑफ, हाँ। मतलब जो हम सोए हुए हैं ये हमारा है, जब हमारा डेथ होगा तब हम जाएंगे। जैसे कि हम सपने में, रियल सपने में जब हम हमारा डेथ होता है तब उठ जाते हो। ओके। सर तो इधर जब तुम्हारा सपना होगा तो तुम उधर उठ जाओ। इसको 2 थ्योरी बोल सकते हैं, हाँ? 2 थ्योरी बोल सकते हैं, एक मल्टीवर्स थ्योरी और ये डिल्यूजन थ्योरी होता है। मतलब एक पर्सन है, हम एक गेम में हैं, गेम सिमुलेशन में है, जहाँ पे कि हमारा कैरेक्टर गेम के बाहर कोई संभाल रहा है। जैसे कि हम कंप्यूटर में गेम खेलते हैं ना, कंप्यूटर में एक कैरेक्टर होता है, फ्री फायर में एक कैरेक्टर होता है जो कि तुम निभाते हो उसको। जहाँ पे चलाना चाहते हो वहाँ चला सकते हो, जहाँ पे भेजना चाहते हो वहाँ भेज सकते हो। वैसे ही हमारा हम एक गेम में है। GTA 5 का एग्जांपल दो, वो थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक। कौन सा वाला? GTA 5। ओके, मेरे को मालूम। हाँ, कैरेक्टर्स होते हैं। हाँ, तो वहाँ पे एक एक कैरेक्टर एक एक इंसान संभाल रहा है, और मेरा कैरेक्टर जो यहाँ पे है कोई और संभाल रहा है अर्थ के बाहर से, अर्थ के बाहर से, अगर- हमारे डायमेंशन से बाहर से, डायमेंशन के बाहर से। अगर हम इसको बोल सकते हैं गॉड, हाँ, इसको अगर बोल वो सकते हैं गॉड ऑफ गैप्स, क्योंकि ये गैप हमको मालूम ही नहीं है, ये चीज हमको मालूम नहीं है, हम बोलते हैं उसको गॉड। ये होता है। साइंस क्या कहता है, पहले सुन लो, ये भगवान क्या है। साइंस कहता है, वो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, नहीं भगवान है, लेकिन हमें पता साइंस नहीं। बोलता है भगवान है, भगवान नहीं हो होने की प्रूफ नहीं है। भगवान हो सकता है, बोलो। भगवान हो सकता है, भगवान होने की अभी तक प्रूफ मिला नहीं है। देयर इज नो प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान का होने का कोई प्रूफ अभी तक मिला नहीं है।
जिस दिन मिल जाएगा साइंस की पूजा करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये गॉड ऑफ गैप्स। सर घर में इन्वर्टर है, हम अकेले रह रहे हैं, अलार्म भी नहीं है, हमारा कुछ काम भी नहीं है, हम बस सोते रहते हैं। ओके, तो फिर क्या भाई तो इवेंचुअली उठ ही जाएगा कोई सब। देखो गुड टाइम में ऐसे उठी दिया सो आज ना उठवा स्वर्गवासी बड़ा तो कोमा में सीरियल में कोमा में बोल सकते हो। दो कंडीशन से, एक तो स्वर्गवासी नहीं तो कोमा वाला। वही अरे सुन लो, तो डार्क एनर्जी जो होता है, डार्क एनर्जी वही चीज है, हेलुसिनेशन है, वो कोई डार्क एनर्जी नहीं है। और जो डार्क एनर्जी की बात कर रहे हो वो नेगेटिव एनर्जी होता है, डार्क एनर्जी नहीं होता। हाँ, नेगेटिव एनर्जी हमारे दिमाग का एक नेगेटिविटी होता है, और डार्क एनर्जी बहुत एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो एक अलग कंसेप्ट है जो कि साइंस का कंसेप्ट है। अगर तुम श्रोडिंगर्स बुक और वो क्वांटम सब नहीं है, नहीं है वो सब क्या कहते हैं, वो सब के अंदर आएगा। डार्क एनर्जी इतना नहीं होता नहीं कम है, लेकिन उसके हिसाब से तो आ जाएगा उसमें। हाँ। उसको जितना चाहिए उतना आ जाएगा। डार्क क्या कहते हैं, डार्क एनर्जी को हम ऐसे डिपिक्ट करते हैं कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर एक ऐसा चीज है जिसको इंटरेक्ट नहीं करता, बट वो सिर्फ एक ही फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, तो जिसको कहते हैं हम ग्रेविटी। बाकी और लाइट के साथ और किसी फील्ड के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करता। उसका हमने क्या कहते हैं मैथमेटिकल उसको एक इक्वेशन दिया है, हम उसको क्या कहते हैं फॉर्म दिया है। और वही है, यदि हम उसको नहीं ऐड करेंगे तो क्या होता है, यदि डार्क एनर्जी नहीं होता, ग्रेविटी क्या कहते हैं गैलेक्सी का जो सेंटर से जितना भी दूर जाओगे उतना उसका स्पीड कमते जाना चाहिए। ओके, इधर 300 है, इधर 150, इधर 200, ऐसे धीरे धीरे कमते जाना चाहिए। बट क्या होता है 300 इधर है, 300 इधर है, 300 इधर है, कंटिन्यूअस फ्लो है। तो उसके लिए डार्क एनर्जी है। उसके बाद क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग हम करते हैं, उसके अंदर हमको जितना बड़ा लेंस दिखना चाहिए उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग हम क्या कहते हैं ज्यादा ही दूर गैलेक्सियों को देखने के लिए करते हैं। ओके, और एक वीडियो भी भेजे थे, यूट्यूब वाला वीडियो। मैं बोलना चाहूँगी कि गौरव ठाकुर नाम का वीडियो बुक क्रिएटर है, सब वीडियो भेजे थे। हर चीज को रिलीजन के साथ मिक्स करना है, रिलीजन नहीं हो रहा मिक्स छोड़ दो, नहीं मिक्स करना है, मिक्स करना है हमको, वही चीज। उसे सोलर साइंटिफिक भी बोलते हैं। क्यों मिक्स करना है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है वही। क्यों पता है, और जितना मैक्सिमम के लिए जितना करोगे उतना तुमको फायदा मिलेगा। हाँ, ऑडियंस ज्यादा है उधर, ऑडियंस ज्यादा है उधर, रिलीजियस भी आ गए, साइंटिफिक भी आ गए, दोनों को पकड़ो। बट हर चीज में हम अर्ग नहीं कर सकते हर किसी के साथ। सर जी हर एक चीज क्या कुछ चीजें लिखिए। क्या लिखा है बोलो? क्या पढ़ी? इसके पीछे वाला पढ़े चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। ये वाला ना, ये सबसे पहले हमारा था, है ये रहेगा। कोई समझता नहीं है साला। तो समझा दो आप। समझने वाले समझ गए, बाकी सब ऋतु में। ओके ठीक है, तो समझने वाले समझ गए, बाकी सब ऋतु में। जी इसके लिए एक समझदार को इशारा काफी है। नहीं, और एक एक फैक्ट से हम एक 50 बच्चा ये बता दे समझने रहा है। वाले आदमियों को 1 मिनट। समझा सकते हैं। एक फैक्ट से इंटेलेक्चुअल्स, थोड़ा आवाज करके बोलो। एक फैक्ट से हम 50 समझने वाले आदमियों को समझा सकते हैं, लेकिन 50 फैक्ट से एक ना समझ को नहीं। इडियट को नहीं समझा सकते। इडियट एंड इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल, ओके, सही बात है। ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई। कुछ नहीं, एयर पोल्यूशन को कैसे कम करें? एयर पोल्यूशन जो कैसे कम फैक्ट्री बंद करा कैसे कम करो? बोलो। जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं उनको बंद कर सकते हैं। एक सेकंड, फैक्ट्री बंद हो गया तो डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे? खाएगा क्या अगर फैक्ट्री बंद होगी तो? एक चीज बोलना है, बताओ। सब बोलते हैं बंद कर दो, ये बंद कर दो। हम नहीं करता कोई नहीं। कर सकते हैं वही। या फिर उसका कोई अल्टरनेटिव बात कर लेते हैं। देखो गाड़ी बंद करने की बात हुई, हम चाहो तो हाइब्रिड बाइक यूज कर सकते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो। बैटरी ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। और एक बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो। हाँ, वो भी है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, देखियो क्या? एच.सी. वर्मा, हाँ मालूम है? बुक है, टेक्स्ट बुक है एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा जी का। तो वो अभी के एजुकेशन का रिवोल्यूशन लाने वाले वो ही एक इंसान है।
तो वो ना ट्रेन से जा रहे थे, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्यों जा रहे थे? सबसे बड़ा सवाल वो है। लोग क्या सवाल पूछे मालूम है? कि इसके पास पैसे है कि नहीं है, इसलिए जा रहा है क्या ट्रेन में? लोग सवाल पूछे ये, लोगों को सवाल पूछना चाहिए था क्यों जा रहा है वो इंसान। Mindset सबका माइंडसेट सेम नहीं है, सवाल पूछने में फर्क है। सवाल हर कोई पूछता है लेकिन दूसरे सही सवाल नहीं पूछता है। ये चीज वैसे जी मैं जैसे बोल रहा था कि बात यह है कि आजकल के जो मियाँ बाबा आ रहे हैं जो ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करते रहे हाँ। यूथ को, ये सेंस क्योंकि इंटरनेट है, इंटरनेट अभी बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो वो भी है। और एक बात यह है कि वो लोग का इन्फ्लुएंस को काटने के लिए बहुत सारे लोग भी हैं। हाँ। जैसे कि ओशो थे, बड़े मस्त इंसान थे। हाँ। उन जैसे कौन है जैसे कि उसको एक बात बोलते थे मालूम है? नाम क्या हुआ? उसको का एक बात बोलना है, सुन लो, सुन लो। उसको का एक बात है, जिस दिन मंदिर में मूर्ति या फिर फोटो दीवार में टंग जाएगी बिना कांटा का, या फिर मूर्ति रख दी जाएगी हवा में फ्लोट करती हुई, उस दिन मैं मंदिर में पहले लाइन में मिलूंगा। बहुत लोग बोलेंगे सूर्य मंदिर, वो साइंस की वजह से लटक रहा था। वो तो मैग्नेटिज्म है, ग्रेविटी के साथ नहीं होता है। कोणार्क का वो साइंस की वजह से था। हाँ, मैग्नेट और मैग्नेट्स प्रूफ सोमनाथ साइड क्या करते हैं? सोमनाथ मंदिर का सोमनाथ मंदिर का था ना, वो टिल्ट है। सोमनाथ शायद थोड़ा टिल्ट। टिल्ट होना बहुत चीजें हैं, नेपाल में भी एक था टिल्टेड था। अरे हमारे उमाधमा tilted है। उमाधमा का वो मंदिर टेढ़ा है, उसकी टिल्ट दीवारें होना भी ज्यादा कुछ है नहीं, सेंट्रल ग्रेविटी काम करता है वहाँ पे। अभी मैं एक बोतल को भी इधर रख सकता हूँ, एक हाँ, वीडियो है मेरा, वीडियो। डाल देना थोड़ा सा हाँ, सेंट्रल ग्रेविटी के साथ। हाँ। ओके, मैं भेज दूंगा, मैं डाल देना उसको। टिल्टेड होना कुछ नहीं है, मैं 45 डिग्री तक टिल्टेड कर सकता हूँ। ये चीज है, क्या टिल्टेड होना ज्यादा नहीं है, लेविटेड होना ज्यादा है। मतलब इसके बाद नहीं आप सुनिए आप एयर पोल्यूशन आ गया ना, हम अरे आ गया। प्रॉब्लम को पकड़ते हैं, सोल्यूशन को नहीं पकड़ते। हम देख रहे हैं गाड़ी से पोल्यूशन हो रहा है, गाड़ी को बंद कर दो। नहीं, गाड़ी को बंद नहीं कर सकते, कम करना। उसको कम कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन साइकिल से जाओ ऑफिस। तुम तो साइकिल से जाते हो, मेरे को मालूम है, तुम लोग साइकिल से ही जाते हो स्कूल। नहीं जाते। पापा लोगों को समझाओ कि पापा आज सैटरडे है, आज साइकिल से जाओ, एक दिन पोल्यूशन कम होगा हमारे बर्गर में। भाई बर्गर हमारा ही बर्गर है, किसी और का बर्गर नहीं है, हमारा ही बर्गर है। सर ये समझा कितने को समझाएगी? हाँ। खुद के पापा को समझा सकते हो, वही काफी नहीं, है। वो भी नहीं समझा सकता मैं। वही काफी है, खुद के पापा को समझा दो, खुद एक भाई दिन कौन निकल कौन सा जाओ। खड़ा पड़ता है पता है? लोग पूछेंगे, तुम्हारे दोस्त पूछेंगे कि आज तुम तो साइकिल से आया, बोलना सैटरडे है, मेरा पोल्यूशन पे काम करने का दिन है, इसलिए मैं आज नहीं करूंगा। वो कुछ और सोचते रहते हैं। वो सोचेंगे। बेकार। पिछली वीडियो में मैं बोला था, मेरे दोस्त हंसे थे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। आज ये चीज है। तो आज थोड़ा इतना ही रखते हैं और टॉपिक। बच्चा था। और आज हिंदी हो गया इंग्लिश के वजह, ये थोड़ा मेरा रिग्रेट रह गया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मेरे को चाहिए। सचिन नेवर रिग्रेट। ओके, नेवर रिग्रेट, वी विल वर्क ऑन दिस, यस वी विल वर्क ऑन सर तो दिस। बोलेंगे, मेरे को फर्क नहीं नेक्स्ट पड़ता। one minute please. Next video will be in English. So please everyone try to speak in English and be prepared for your future and our future. Okay? ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छा है। किने को मुझे लगता है एवरी No, it's okay. It's okay. This is normal. डिस्कवर आगे चलो, इतना काट का बढ़ता है पहला तो मैं